ہماری آبادی 18 کروڑ کی ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم کو وہاں پر پذیرائی 10% کی بھی ملتی ہے تو ہمیں 12 کروڑ مل جاتے ہیں, اور ان کو اگر آبادی 25% کی بھی ملتی ہے, اگر ان کو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ بھئی وہ ان کے مال آتے ہیں اور اس کو جو رسپانس ہے وہ 25% بھی مل جاتا ہے جی, تو کتنے ہوں گے؟ سوال یہ کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ 4.5 ہوں گے, 4.5 کروڑ ہوں گے. تو ہمیں بائی آل مینز میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے, ہمیں اپنی صلاحیتوں پر, اپنے رب پر, اپنے کیپیبلٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور کسی بھی چیز سے گھبرانا چاہیے. چائنا اتنا بڑا ملک ہے, پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا رکھا ہے, تو کیا ہماری انڈسٹری بند ہو گئی؟ اور ہمارا دوست ملک ہے, ہم ہر چیز اس سے منگا رہے ہیں, سب چیز کر رہے ہیں. پاکستان میں چائنا کی ملتی ہے, بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو چائنا بیسیکلی یعنی را مٹیریل ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن ہم ان سے لے کے اور انہی کو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے بھی ہمیں کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایک بڑی منڈی ملے گی. مشیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدر پاکستان نے ایک واضح طور پہ ایک اس کی اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان کے کہ ہم دنیا کے کئی ممالک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے, پر اہمیت کا حامل انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہندوستان, اس کے بغیر تجارت کیے ہوئے بھی بغیر ہم نہیں رہ سکتے, چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور چیز ہے جس پہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. حرف آخر دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو جمہوری ڈیموکریٹک پاکستان میں اس وقت حکومت ہے, اس کا یہ فرسٹ قدم آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, اور پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ جو ابھی ہے چل رہا ہے سلسلہ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی فروٹفل ہے, کیونکہ جو ہے جی, جب ایک قدم صدر صاحب نے پاکستان کے بڑھایا ہے تو انڈیا بھی ایک قدم آگے بڑھے گا, کیونکہ جب تک کوئی قدم نہیں بڑھے گا تب تک دوسری طرف سے بھی قدم نہیں بڑھتا ہے. اور جو بات دیکھی جائے, اگر آپ دیکھیں تو ایک گورنمنٹ کی انالیسس ہوتی ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے وہ پڑوسی ہیں یا ہماری ان سے کوئی تکرار ہے. لیکن آپ اگر جو میں نے یہاں گھوم کے دیکھا ہے, جو پبلکلی دیکھے تو پبلک میں آپس میں نہ تو انڈیا کی پبلک لڑنا چاہتی ہے پاکستان کی پبلک سے, نہ پاکستان کی پبلک انڈیا سے لڑنا چاہتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ فائدہ مند, اس لیے صدر صاحب بھی ہوپ فل ہوں گے کیونکہ یہاں کی پبلک ان سے ملنا چاہتی ہے. اچھا, آپ ایک بزنس مین, آپ آئے تو اپنے وہی ہے فیملی ٹور ہے, کوئی بزنس کے حساب سے نہیں ہے, فیملی ٹور نہیں تھا, لیکن بزنس کو میں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آپ کو کون سی چیز ایسی نظر آئی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیکٹر میں انویسٹ ہمارے یہاں ہونی چاہیے؟ یہاں پہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان انڈیا میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, اور انڈین جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ براڈ فیلڈ ہے دونوں کے پاس, کیونکہ دونوں کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اگر کمپیئر کیا جائے تو ریسورسز میں ایسا نہیں کہ پاکستان بہت پیچھے ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اور انڈیا کا پاس بھی بہت بڑا ملک ہے, اس کے پاس بھی ریسورسز زیادہ ہیں. اگر ان ریسورسز کا آپس میں ٹرانزیکشن کیا جائے تو دونوں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دوسرے ملک سے ایکسپورٹ کرا, پاکستان بھی, انڈیا بھی دوسرے ملک سے ایکسپورٹ کرا, وہ چیز پاکستان میں اویلیبل ہے. اگر پاکستان سے وہ امپورٹ کرے گا اور یہ انڈیا کی کوئی چیز پاکستان میں امپورٹ کرے تو ایک تو اس کا کاسٹ فیکٹر آئے گا, جیسے بہت اکنامیکل آئے گی, انڈیا کو بھی ملے گا, پاکستان کو بھی ملے گا. جی, آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ فرانس اور جرمنی اگر دیکھا جائے تو دونوں ملکوں پہ کافی ایک اختلافات بھی ہیں شدید, ان کے ایک طرف جو ہے خدشات بھی ہیں, اس کے باوجود وہ ٹریڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور دیکھا جائے کہ وہ دونوں یورپ یونین کے جو ہے ممبر بھی ہیں اور ان کی کرنسی بھی ایک ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, جہاں تک کرنسی ایک کرنے کی بات ہے وہ ابھی کافی دور کی چیز ہے. پہلا جو ہے کرنسی یعنی کہ ان کی کرنسی ایک ہے, یعنی کہ ان کے اختلافات ہونے کے باوجود, میرا سوال یہی تھا, ان کی کرنسی بھی ایک ہے اور دونوں جو ہے یورو کے جو ہے ممبر بھی ہیں اور ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. پاکستان آخر کیوں نہیں آتا اس جگہ پہ؟ کرنا چاہیے, آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. انفیکٹ ایسی چیز کرنے کی ضرورت ہے, اس سے دونوں دیشوں کو ہی فائدہ ہوگا, دونوں دیشوں کے بزنس میں اضافہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے آفتاب صاحب کی آج دنیا یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ کوئی بھی دیش بڑے بڑے بم بنانے سے, بڑے ہتھیار بننے سے, رکھنے سے شکتیشالی نہیں ہوتا, اس کی اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آج چائنا کیوں اوپر چڑھا ہوا ہے پورے ورلڈ میں؟ کیونکہ اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی, اس کا جو بیس بزنس کا ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا. امریکہ اس سمے جو پاورفل تھا وہ چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو ہم دونوں دیشوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا فائدہ ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے تاکہ دونوں دیش ترقی کریں, جس میں کامن کرنسی بھی, جو مجھے لگتا ہے بعد میں یہ چیز بھی پاسبل ہو سکتی ہے دونوں دیشوں کے بیچ. جی میجر صاحب, وہی بات ہے کہ اگر فرانس اور جس طرح بات کی میں نے جرمنی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح منوج کرے کہ ہو سکتا ہے, پر سب سے پہلے جو ہے آپ ایک ریٹائر میجر بھی ہیں, بم اور نیوکلیر اثاثے بنانے سے جو ہے دو ملک جو ہے بڑا پاورفل تو ہوتا ہی ہے, پر اس سے سب سے زیادہ جو پاورفل ہے وہ ٹریڈ ہے.
जो रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल ठीक। ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि आजकल का जो नया दौर आ गया है इसके अंदर तिजारत और माली क़ुव्वत जो है बुनियादी हैसियत इख्तियार कर गई है। बल्कि आपका रूस टूट गया तो आप देख लीजिए कि उसके जो बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, वो डेकोरेशन पीस की तरह सजे के सजे ही रह गए। सही। तो इसलिए मैं तो ये नहीं समझता, इनका होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके बगैर, इनके होने के साथ साथ भी हम एक अच्छे ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। और हिंदुस्तान से तो हमारा एक तरह का बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि तक़सीम हिंद से पहले तो ये एक था। हमारे खाना, हमारा रहना, हमारा सोचना, हमारे ख़ानदान डिवाइडेड हैं। और फिर अभी जो मुशीर आलम साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप इनसे ये सवाल कीजिएगा कि जब ये यहाँ तशरीफ़ लाए तो इनको यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई खौफ, कोई चेक, कोई महसूस हुआ? जबकि हम समझते हैं कि टोटल फ्रीडम है, और यही फ्रीडम हम तवक्को करते हैं कि जब हमारे लोग इंडिया जाएं तो उनको भी हासिल हो। जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल मनोज श्रीवास्तव से भी करूंगा, और मैं जो है मुशीर खान से भी करूंगा कि आप जब पाकिस्तान आए थे, मनोज जी भी पाकिस्तान आ चुके हैं, यहाँ पे वो इजीली उसको एक्सेस थी कि कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी को चेक इन बैलेंस नहीं था। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान से कोई बंदा आता है यहाँ घूमने, या कोई इंसान आता है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे प्रॉब्लम आपको भी यकीनन पेश नहीं आएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो यकीनन इस सवाल से आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती कैसे बढ़ सकती है, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कैसे आ जा सकती है। इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी। उनकी दोस्ती पे यकीनन पाकिस्तान में हर रहने वाला शख्स यही सोचता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वो हम एक दफ़ा देखें, वहाँ जाएं, पर यकीनन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि वीज़ा जो है बासानी तरीके से नहीं मिल सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग यही सोचते हैं कि तिजारत बढ़े और मुल्क दोनों तरक्की करे। बिला आखिर ये सियासी इशूज़ हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वो हल होते हुए नजर आए। ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से लोग आते हैं उनको क्या यहाँ पे महसूस होता है, और बासानी तरीके से वो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी जगह जा सकते हैं। और इसी तरह मैंने एक बात की थी कि मैं जब आऊँगा तो मनोज श्रीवास्तव से पूछूंगा, मनोज जी आप जब पाकिस्तान आए थे तो यकीनन आपको आसानी से एक्सेस थी, क्या महसूस किया था अपने पाकिस्तान में? और मैं समझता हूँ अभी 3 साल गुजर चुके हैं। भाई मैं जब पाकिस्तान आया था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई विदेशी देश में आया हूँ, कोई दूसरे देश में आया। बिल्कुल इंडिया की तरह वैसे लोग, वैसा पहनावा, वैसा खान पान, वैसा बोलचाल, रिश्ते जो वैसे हैं, व्यवहार जो बिहेवियर था नॉर्मल, बिल्कुल मुझे लगा अपने देश में ही हूँ मैं। और जहाँ तक मुश्किलात की बात है, मुझे नहीं लगता किसी भी शख्स को पाकिस्तान आने के बाद किसी प्रकार की मुश्किलात हो सकती है। और खासकर जो मैंने महसूस किया जाती तौर पे, मुझे सच बताएं तो एक सहाफी की हैसियत नहीं, एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया की हैसियत से मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, और मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। मुझे लगता है इससे ज्यादा और क्या बढ़िया बात हो सकती है किसी भी विदेशी के लिए। जी, मुशीर खान साहब आपसे भी यही सवाल होगा मेरा कि आप भी पाकिस्तान आए हैं और फैमिली के साथ आप मुख्तलिफ जगहों पे आए जाए होंगे, क्योंकि मेजर साहब ने कहा था ये सवाल लाजमी पूछिएगा, तो मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल करना था। जैसे मनोज साहब ने भी कहा, मेजर साहब ने भी कहा कि यहाँ का रहन सहन और पहनावा तो एक ही है, क्योंकि वो एक मुल्क था पहले, वो तो डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ जो चेक एंड बैलेंस वाली बात आप कह रहे हैं, यहाँ पे मुझे कहीं भी महसूस ही नहीं हुआ कि कहीं मुझे चेक एंड बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ज़्यादा मैं आगे बढ़ा, लोगों से ज़्यादा बातचीत करी, लोगों के व्यूज़ लिए बिजनेस के ऊपर, प्लस आपस में तिजारत के अलावा और भी कल्चरल व्यूज़ भी लिए, तो वो ज़्यादा रहा। अगर चेक एंड बैलेंस होता तो शायद मैं इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता। शमीर साहब आप भी हालिया दिनों में हिंदुस्तान से होके, आप मुझे जिस तरह बता रहे थे, आपने हिंदुस्तान में, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बात है, हिंदुस्तान में आपने क्या महसूस किया एज अ बिजनेसमैन? आप वहाँ गए। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हम 2004 में एक पहला ट्रेड डेलीगेशन लेकर गए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सराज कासम तेली साहब जो बीएमजी के चेयरमैन भी हैं और उस वक्त वो सदर भी थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो उनकी लीडरशिप में हम यानी वहाँ पर गए। मैं आपको उस वक्त मेरा परसेप्शन कुछ और था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं इंडिया जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था, सुनी सुनाई बातों के ऊपर वही दिमाग के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो थी। लेकिन जब हमने वहाँ पर जाके देखा तो हम हैरान रह गए कि इस कदर मोहब्बतें, आप यकीन जानिए लिटरली गले मिल के लोग रोए कि हम क्यों बिछड़ गए। और बल्कि एक साहब ने वहाँ पर एक शेर पढ़ा जब हमारी यानी मीटिंग हो रही थी और उसके अंदर फिर वो एड्रेसेस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना एक आए, सब चीज़ें भुला दें, क्यों ना एक शजर ऐसा लगाया जाए जिसका साया पड़ोस में जाए।
हम इतने इम्प्रेस हुए और हमने आने के बाद यहाँ पर फिर तमाम कोशिशें की। ये तो दरअसल दरमियान में कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं, वरना हम बहुत पहले बहुत सारी मनाजिल तय कर चुके होते। मिसाल के तौर पे अभी आपने मनोज साहब से एक सवाल किया कि भाई वीज़े की पॉलिसीज़ या हम करेंसी, ये सारी चीज़ें बात की हैं, क्योंकि गर्मजोशी आते आते और करीब आते आते कुछ थोड़ा सा टाइम लगता करेंसी है। का इसीलिए सवाल किया सही। कि उनकी करेंसी एक इतने इख्तिलाफ बिल्कुल होने है, के बावजूद हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हम पर अपने हमारे यहाँ खित्ते में तो एक हो जाए। वीजा पॉलिसी भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यानी क्या कहते हैं, इसके ऊपर अगर हम बैठे हैं और सोच रहे हैं, तो सोच में हमें सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए और इससे कोई दो राय नहीं है कि जो चीज़ें होती जाएंगी, लेकिन वो होंगी टाइम बाय टाइम। इम्प्लीमेंट जिस तरह उसका होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो तमाम गिले शिकवे जो अब ख़त्म हो रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अनकरीब बहुत तेज़ी के साथ उसमें तब्दीली आएगी तब्दीली और आएगी। मजबूत तब्दीली आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये तो आपने कहा कि तब्दीली आनी चाहिए और आएगी भी, पर क्या समझते हैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से कि अब जो ट्रेड यहाँ पर जिस तरह मुशीर खान पाकिस्तान आए, आप भी डेलीगेशन लेके वहाँ जाते हैं, पर क्या समझते हैं कि किस तरह बासानी होनी चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या होगी दोनों हुकूमत के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मदद कर सकते हैं, और हम यानी वहाँ और वहाँ, जैसे मुशीर साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ वो कर सकते हैं और हम वहाँ कर सकते हैं। अभी आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस हमारे यहाँ है, इंडिया ने हमें पेशकश की है कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं लेते? फौरी तौर से हमें ले लेना चाहिए, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? इसी तरह से हमारा, मैं अभी वहाँ पर इस वक्त वहाँ पर मेड इन पाकिस्तान नुमाइश कल से शुरू हो रही है, सिर्फ ऑनली यानी क्या कहते हैं पाकिस्तान ब्रांडेड आइटम उसके अंदर वहाँ पर होंगे, तो सिंगल कंट्री नुमाइश है और उसके अंदर यहाँ से बेशुमार लोग गए हैं, यानी तकरीबन 100 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्टर्स यहाँ से गए हैं, जिनकी नुमाइश, और वहाँ पर उन्होंने सेल की भी उनको इजाज़त दी है। मैं समझता हूँ रिकॉर्ड सेल होगी, आप देखेंगे उसके ऊपर किस तरह उसकी पसीराई। लोग इस कदर बेचैन हैं, 1 माह 1.5 माह पहले जब मैं वहाँ पर था तो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे लोग। अब यहाँ से जो कदरें हैं, मैं आपको बताऊँ कि भाई लॉन हमारे यहाँ बनती है जी, लॉन के जोड़े वहाँ जब जाते हैं तो डबल प्राइस पे, पाकिस्तान से डबल प्राइस पे, जबकि उनका रुपया जो है वो हमारे 1.90 रुपये के बराबर 1 रुपया है। जी, तो एक तरफ तो यानी आप ये समझिए कि करेंसी का डिफरेंस है, दूसरी तरफ उसके बावजूद डबल प्राइस के ऊपर वहां पर बिक रहा है और जा रहा है। एग्रीकल्चर में अब ये भी एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं। लीगल साइड से क्यों नहीं हो सकती ये चीज? ये सारी चीज लीगल वे में भी हो सकती है। ये वाया थर्ड कंट्री हो रही है या फिर खेपियों के जरिए हो रही है? खेपियों के जरिए, और उसमें काफी नुकसान हो जी, रहा है और इसके महंगी से अंदर महंगी दोनों चीज मिल मुल्कों का रही नुकसान है, है। वाया वो दुबई से या कहीं और दोनों से। मुल्कों का नुकसान है। एक थर्ड कंट्री या तो उसके अंदर कमा रही है या फिर खेपी हजरात जो है उसके अंदर कमा रहे हैं। तो अगर इसके अंदर हम आसानियां पैदा करेंगे तो दोनों मुल्कों के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। जी, आप शमीम खान, आप एग्रीकल्चर साइड पे आप काम करते हैं, मैं जिस तरह वो है एग्रीकल्चर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि डिपेंडेंट हम मुल्क दोनों इसी पे एग्रीकल्चर बेस पे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च एग्रीकल्चर फार्म जो है वो लाड़काना डोगरी में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, उनकी एक DR82 एक रिसर्च थी चावल की, जिससे जापान ने और दीगर ममालिक ने फ़ायदा लिया। पड़ोसी मुल्क ने नहीं लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया, पर दूसरे ममालिक ने लिया कि उनकी एक रिसर्च से उन्होंने चावल लगाया और उससे काफ़ी उन्होंने फ़ायदा हासिल किया। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी हम एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत से है, जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो रिसर्च आप बता रहे हैं चावल की हुई है, अप्रोच अच्छी नहीं थी। अगर अप्रोच ही अच्छी होती तो ये आज जापान से पहले हिंदुस्तान में होता। सीधी बात है कि सारे डिपेंड कर रहा है अप्रोच पे। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले जब हम एक थे तो ट्रांजिशन था, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि एक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज़्यादा थोड़ी थी बहुत ज़्यादा। मेन इशू है कि हमें जो है पहले एक साथ काम करने का। जब धीरे धीरे काम करेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्री ट्रेड हो जाएगा। फ्री ट्रेड होना चाहिए। मेजर साहब, आप क्या समझते हैं? फ्री ट्रेड होना चाहिए, और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत हैं जो हिंदुस्तान के हम दोस्तों को अगर बताते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसी भी रिसर्च है, अगर वो आप हिंदुस्तान ले जाते तो आप यकीनी हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है, पर उससे यूरोप ममालिक और दूसरे ममालिक फ़ायदा हासिल करते हैं। देखिए, जैसे मुशीर आलम साहब ने कहा, बात तो वही है। जब हमारी बाहमी एतमाद होगा और आना जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि भारत की कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इसी तरह भारत को पता चलेगा कि उसके बिल्कुल हमसाये में जो मुल्क बैठा है वहाँ पे कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये है कि ये दोनों जब मिलकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है। पर एक सवाल जो शमीम साहब ने कहा